Hi students, I am Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School. Welcome to my YouTube channel. So today we will start chapter number 3 of class 5th, subject English Medium. I hope you have watched all the videos of chapter 1 and 2. And still, if you haven't watched, then please go through my YouTube channel. And the name of my YouTube channel is Prakash Vadhwana, English teacher. You just go through it and you can watch all the videos of chapter 1 and 2 of 5th standard. Okay, so now in this video we will study about unit 3, and this chapter is about student festivals. Now you like festivals very much. Even all the peoples like festivals very much, because festivals are the colors of human life. Okay, and we all love festivals. And what did the festivals add in our life? So festivals indeed not only added color to our routine life, but they also rejuvenated our lives with new zest, energy and love for life. Okay, so let's start activity 1, pre-task. We all love festivals, and festivals break monotony and they add color to our routine lives. Monotony means what, students? Boredom. So daily routine से, हमारी एवरीडे की लाइफ से जो हम बोर हो जाते हैं ना, उसको फेस्टिवल्स क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, and they add color to our routine lives. Okay, and festivals are occasions, festivals are times to celebrate some natural phenomena. And a phenomena means what? Events and season, historical, social, political, environmental, personal, cultural, traditional or agricultural significance. Now significance means what? Importance. सो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उनके अलग अलग इम्पोर्टेंस के मुताबिक. ओके, सो फेस्टिवल्स इन अदर वर्ड्स मीन्स व्हाट, स्टूडेंट्स? सो फेस्टिवल्स वेर अ मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ आवर रिच cultural heritage from generation to generation and inculcated values and morals in our lives. Okay, and some festivals are based on some beliefs and legends, some stories. For example, Diwali. Okay, and festivals were usually taken as a time for enjoyment. And various days of importance from local to international levels are celebrated throughout the year. Okay, so there are, students, two types of festivals: national festivals and religious festivals. तो नेशनल फेस्टिवल्स मीन्स व्हाट? कौन से फेस्टिवल नेशनल कहलाएंगे? फॉर एग्जांपल, रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को जो हम सेलिब्रेट करते हैं. फिर इंडिपेंडेंस डे है जो 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं. फिर गांधी जयंती है जो 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स. एंड सेकेंड टाइप, रिलीजियस फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स में कौन से आएंगे? सो नवरात्रि है, मकर संक्रांति मीन्स उत्तरायण, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी,
दशहरा, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, okay, Eid, Muharram. So these are the examples of religious festivals, and there are so many days which we are celebrating on national days, on international days. For example, 28 February नेशनल साइंस डे है, एंड 5 सितंबर टीचर्स डे है, 14 नवंबर है चिल्ड्रंस डे. सो दीज आर द नेशनल डेज. देन इंटरनेशनल डेज की बात करें तो फर्स्ट में वर्ल्ड लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं. जुलाई में फर्स्ट जुलाई को वर्ल्ड डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया. फिर 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 1 अप्रैल ऑल फूल्स डे. Okay, so these are the international days which we are celebrating throughout the year. Okay, so in this chapter we are going to learn about 2 festivals. One is Navroz Pateti and second one is Bihu. तो ये 2 फेस्टिवल के बारे में आज हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली फॉर वन फेस्टिवल, एंड दैट इज नवरोज पतेती. ओके, नाउ देख सकते हो आप फोटो में, दिस पिक्चर इज अबाउट कौन से फेस्टिवल का है ये? इंडिपेंडेंस डे का फ़ोटो है. कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त को. और टाइप कौन सा ये फेस्टिवल का? नेशनल फेस्टिवल है. प्लेसेस ऑफ सेलिब्रेशन, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑल ओवर इंडिया. और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल? सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस क्या है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का? तो इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. इस दिन इंडिया को क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी. इसलिए हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पिक्चर किसके बारे में है स्टूडेंट्स? सेकेंड पिक्चर इज अबाउट, वेरी गुड, पता चल गया आप लोगों को, जन्माष्टमी जो नेक्स्ट मंथ ही आने वाली है. ओके, दही हांडी भी कह सकते हैं उसको. सेकेंड है, कब सेलिब्रेट किया जाता है उसको? जन्माष्टमी के दिन. टाइप्स ऑफ फेस्टिवल कौन सा है? रिलीजियस फेस्टिवल है ये. ओके, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिए हैं जिसके बारे में आपको लिखना है, और मैंने ऑलरेडी आपको फोटोग्राफ सेंड किए हुए हैं. तो आप सब उस फोटो में से देख के यहाँ पे लिख देना सारे के सारे फेस्टिवल्स के बारे में. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 2. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. The present generation, especially the young, make more use of cell phones and computers. Nowadays what happens students, जितने भी यंगस्टर है, जितने भी यंग है, उन सब ने क्या स्टार्ट कर दिया है? सेल फोन का और कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है. Therefore what happened, writing letters to friends and relatives
इज़ ग्रेजुअली फॉरगॉटन। मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर की वजह से क्या हो गया है, पहले के ज़माने में हम लेटर्स लिखते थे, किसको, फ्रेंड्स को और हमारे रिलेटिव्स को, बट वो चीज़ अब धीरे 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 क्या हो गई है, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली स्लोली हम सब उसको भूल गए। क्यों? क्योंकि व्हाट्सअप आ गया है हमारे पास, व्हाट्सअप, फेसबुक, जिसकी वजह से हम लेटर्स कैसे लिखते हैं सब कुछ भूल गए हैं। सो हियर टू पेन फ्रेंड भरत एंड जमशेद एक्सचेंज लेटर्स डिस्क्राइबिंग हाउ दे सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर डे। तो यहाँ पे ये चैप्टर में दो फ्रेंड्स के बारे में बात की गई है, एक का नाम है भरत और दूसरे का नाम है जमशेद। वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं क्या, इन्फॉर्मेशन अपने अपने न्यू ईयर के बारे में, कि वो अपना अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसका लेटर वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। वो आज हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जमशेद का लेटर रीड करेंगे। जमशेद ने भरत को एक लेटर लिखा हुआ है। ओके, किसके बारे में है, क्या है, देखते हैं। अब सबसे पहले तो एड्रेस दिया हुआ है, 16 पारसी कॉलोनी, अलकापुरी रोड, बड़ौदा, 15 नवंबर 2007, डियर भरत। अब अगर आप लोगों को याद है, पता है, आप जानते हो, तो जिसको लेटर लिखा जाता है ना, जिसको लेटर आपको लिखना है उसका नाम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो ये लेटर किसको लिखा गया है, भरत को, और कौन लिख रहा है वो अगर आपको जानना है तो उसका नाम लास्ट में लिखा हुआ होता है। यहाँ पे देखो, विथ लव जमशेद। तो जमशेद ने किसको लेटर लिखा है, भरत को, और ये दोनों के दोनों क्या है, पेन फ्रेंड है। नाउ पेन फ्रेंड मीन्स वर्ड, कीवर्ड्स में देख सकते हो आप कि पेन फ्रेंड मतलब पर्सन विथ whom वन बिल्ड्स अ फ्रेंडशिप बाय एक्सचेंजिंग लेटर्स। एक ऐसा पर्सन जो अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए लेटर्स के साथ जो एक्सचेंज करता है ना, बातचीत करता है लेटर्स के थ्रू, उसको पेन फ्रेंड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन से दो फ्रेंड्स हैं स्टूडेंट्स, जमशेद एंड भरत। फर्स्ट लेटर किसने लिखा है, जमशेद ने लिखा है, किसको, भरत को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फेस्टिवल्स, हैप्पी टाइम टुगेदर। I have not heard from you for a long time. जमशेद भरत को कह रहा है कि मैंने बहुत लंबे समय से तेरे बारे में कुछ सुना ही नहीं है। ओके, आई होप यू आर फाइन। मैं आशा करता हूँ कि तू क्या होगा, फाइन होगा, अच्छा होगा। 2 months back, you had asked me how we celebrated our new year. 2 महीने पहले तूने मुझे पूछा था कि भाई आप आपका न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हो। कौन लिख रहा है ये, जमशेद। जमशेद किसको पूछ रहा है, भरत को, बराबर। But I was busy with my first test and also with Navroz और पतेती, our पारसी न्यू सेलिब्रेशन। बट मैं क्या था, बिजी था। अब मैं मीन्स कौन, जमशेद। तो जमशेद क्या था, बिजी था, इसलिए वो उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया कि भाई हम लोग हमारा न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि वो बिजी था, किस में, उसके टेस्ट चल रहे थे, और ऑल्सो नवरोज़ और पतेती, हमारा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा था पारसियों का। ओके, सो स्टूडेंट्स, जमशेद जो है वो कौन से कास्ट का है, पारसी का।
तो उसका टेस्ट और उसका जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन था, इसकी वजह से 2 महीने पहले भरत ने जमशेद को पूछा था कि भी आप लोग आपका न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हो, लेकिन वो टेस्ट की वजह से उसको रिप्लाई नहीं दे पाया। लेकिन अब वो रिप्लाई दे रहा है उसको, किसको? भरत को। कौन? जमशेद। ओके, देखते हैं आगे। वी पारसीज आर अ स्मॉल कम्युनिटी। हम पारसी जो है ना, उनकी कम्युनिटी कैसी है स्टूडेंट्स? छोटी सी ना। कम्युनिटी मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ पीपल। उनकी कम्युनिटी बहुत ही छोटी है। वी केम फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड इन गुजरात। नाउ पारसी स्टूडेंट्स कहाँ से आए हुए हैं? ईरान से आए हुए हैं। और कहाँ पे सेटल हो गए वो? गुजरात के अंदर। ओके, सो पहले तो पतेती क्या है? व्हाट इज पतेती? तो पतेती इज द पारसीज न्यू ईयर। एंड वेयर डिड द पारसीज कम फ्रॉम? तो द पारसीज केम फ्रॉम ईरान। और फिर कहाँ पे आके सेटल हो गए पारसीज? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, वी वर्शिप फायर एंड अवर टेम्पल इज कॉल्ड अगियारी। नाउ वर्शिप मीन्स व्हाट? पूजा करना। तो पारसीज लोग किसकी पूजा करते हैं स्टूडेंट्स? फायर मीन्स आग की। एंड उनका जो टेम्पल है ना, उसको क्या कहते हैं? अगियारी। फॉर एग्जाम्पल फायर टेम्पल। तो पारसियों के टेम्पल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अगियारी। और फायर टेम्पल भी कह सकते हैं हम। और वो लोग वहाँ पे किसकी वर्शिपिंग करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? फायर, आग की। ओके, वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक्स टू द सैक्रेड फायर एंड रिसाइट प्रेयर्स। मंदिर में वो लोग क्या करते हैं? सैंडलवुड की स्टिक जो है उसको ऑफर करते हैं। किसको? सैक्रेड फायर को। सैक्रेड मीन्स होली, पवित्र। पवित्र जो आग है, अग्नि है, उसको वो लोग क्या ऑफर करते हैं? सैंडलवुड स्टिक्स ऑफर करते हैं। और फिर उसके बाद क्या गाते हैं? क्या रिसाइट करते हैं? क्या बोलते हैं? प्रेयर्स। ओके, men and children cover their heads with small caps and women cover their heads with saris। और उस टाइम पे मैन और बच्चे अपने हेड को कवर करते हैं। किससे? छोटी सी कैप से। और जो वुमेन है वो साड़ी से अपना हेड कवर करती है। वी ऑल ग्रीट विथ साल मुबारक टू ईच अदर। हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, साल मुबारक कहते हैं। जैसे हम लोग दिवाली पे एक दूसरे को विशेष करते हैं ना, ग्रीट करते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। सेम टू सेम वो लोग भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और साल मुबारक कहते हैं। ओके, सो लेट्स सी इन द फोटोज। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फोटो में आप लोग देख सकते हो क्या है? सैक्रेड फायर है, पवित्र आग है। किसकी? पारसी, जो पारसी कम्युनिटी है ना, वो अपने टेम्पल में किसकी पूजा करते हैं? ये जो फायर देख रहे हो ना आप, उसकी पूजा करते हैं। और उनके जो टेम्पल है, उसको टेम्पल को हम क्या कहते हैं? अगियारी मीन्स फायर टेम्पल। ये देखो, आप लोग देख सकते हो। और उन लोगों ने अपना हेड किससे कवर किया है? कैप से। ओके, और ये जो आप फोटो में देख रहे हो वो क्या है? सैंडलवुड स्टिक। सैंडल मीन्स चंदन। चंदन की जो लकड़ियाँ होती है ना स्टूडेंट्स, उसको वो लोग फायर को ऑफर करते हैं। ओके, आप फोटोग्राफ में देख सकते हो सैंडलवुड स्टिक्स।
ओके, ये भी एक फ़ोटो है फायर का जहाँ पे वो लोग आग जलाते हैं। अब यहाँ पे हम पूरे उनके टेम्पल के बारे में समझेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अगियारी। मंदिर के अंदर क्या होता है वो चीज़ हम समझेंगे। सॉरी, आप देख सकते हो मंदिर के अंदर का ये पूरा का पूरा पार्ट है। देखो, सबसे पहले हम आग के बारे में पढ़ते हैं, सेक्रेड फायर इनसाइड एन अगियारी। देखो, ये जो यहाँ पे निशानी दी हुई है ना आग की, वो क्या है, फायर, सेक्रेड फायर। दिस फायर इज नेवर अलाउड टू डाई आउट। ये जो फायर है ना स्टूडेंट्स, उसको कभी भी बुझने नहीं देते हैं। और उसको मेंटेन कौन करता है, प्रीस्ट। वहाँ पे जितने भी पुजारी लोग हैं ना, पादरी, वो लोग इस आग को कभी भी बुझने नहीं देते हैं। आप ये एरो देख सकते हो ब्लैक कलर का, उसको कॉन्स्टेंटली जलने देते हैं। और ये फायर के अंदर वो लोग क्या डालते हैं, सैंडलवुड स्टिक्स। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे सैंडलवुड स्टिक्स। ओके, तो ये जो है वो क्या है, सेक्रेड फायर। दूसरी चीज, यहाँ से एंट्रेंस है। पहले यहाँ पे नीचे देख लो, ये क्या है, वॉश बेसिन्स है। वॉश बेसिन, टेम्पल में जब आप एंटर होते हो ना, तब आपको वॉश बेसिन में क्या करना पड़ता है, अपने हैंड्स और फेस को वॉश करके ही आपको अंदर जाना है। ये उन लोगों का रूल्स है। और बीच में ये जो बेंच है ना, वो क्या है, प्रेयर हॉल है। जितनी भी अगियारीज होती है, जितने भी फायर टेम्पल होते हैं ना पारसीज के, वहाँ पे प्रेयर के लिए, रिलीजियस राइट्स के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। वेडिंग्स, उनकी शादियाँ भी यहाँ पे ही होती है। ओके, दूसरा है बुक शेल्व्स। आप देख सकते हो, बुक शेल्व्स मतलब उनकी जितनी भी होली बुक्स हैं, जैसे कि खोरदे, अवेस्ता, इंग्लिश और गुजराती की बुक्स आपको यहाँ पे मिल सकती है, प्रेयर की रिलेटेड सारी की सारी बुक्स। फिर ये है कास्टी रूम। कास्टी रूम किसके लिए होता है, आफ्टर द वॉशिंग ऑफ द हैंड्स एंड फेस। हैंड्स और फेस को वॉश करने के बाद कास्टी और सेक्रेड थ्रेड इज टाइड बिफोर एंटरिंग द प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल में एंटर होने से पहले आप लोग यहाँ पे एक पवित्र धागा बांध सकते हो। और वुमेन के लिए एक सेपरेट रूम भी होती है पवित्र धागा बांधने के लिए। मस्जिद में भी होता है, शायद आप लोगों को पता होगा। मुस्लिम कम्युनिटी मस्जिद में भी पवित्र धागा बांधते हैं। वैसे यहाँ पे भी पारसी लोगों की एक रूम होती है सेक्रेड थ्रेड बांधने के लिए। प्रेयर हॉल में एंटर हो ना, उसके पहले उनको सेक्रेड थ्रेड बांधनी पड़ती है। तो उसको कौन सा रूम कहते हैं, कास्टी रूम कहते हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट डू द पारसी वर्शिप and what is the name of their temple? So the Parsi worship fire. The temple is called Agyari or the fire temple. Okay, ये रहा fire। ये देखो फायर, और ये स्टिक्स पड़ी हुई है थाली के अंदर, देख सकते हो आप लोग। एंड what do the Parsi offer to the sacred fire?
sandalwood stick. So the Parsis offer sandalwood sticks to the sacred fire. Okay. And what do men wear while offering prayers? Prayers के टाइम पे वो लोग क्या पहनते हैं स्टूडेंट्स? Men wear small caps while offering prayers. आप देख सकते हो यहाँ पे ये पारसी कम्युनिटी के बच्चों का ड्रेस कोड है. देखा, स्मॉल कैप पहनी हुई है ना उन्होंने, और एक दूसरे को ग्रीटिंग कर रहे हैं वो. ठीक है. ये वुमेन है, वुमेन ने देखो कवर किया हुआ है कपड़े से उनका हेड. ठीक है. ये पारसियों का न्यू ईयर, उनके भगवान है ये गॉड. सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. उनका टेम्पल कैसे होता है अंदर से वो भी हम लोगों ने देखा. फायर का भी फोटो देखा. सैंडलवुड स्टिक वो ऑफ़र करते हैं वो भी हमने देखा. आप यहाँ पे भी टेक्स्ट बुक में भी, आपकी टेक्स्ट बुक में फ़ोटोग्राफ में देख सकते हो. ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ ऑन पतेती. अब उनका जो न्यू ईयर है नवरोज़, उसको पतेती भी कहा जाता है स्टूडेंट्स. सो ऑन पतेती एवरीवन वेक्स अप अर्ली. सब लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह में. गेट्स रेडी एंड वियर्स न्यू क्लोथ्स. फटाफट रेडी होके नए कपड़े पहन लेते हैं. वी डेकोरेट आवर हाउसेज एंड स्टेप्स एट द एंट्रेंस विथ चॉक एंड कलर्ड पाउडर इन डिफरेंट शेप जस्ट लाइक रंगोली एंड विथ फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स. हम लोग दिवाली में जैसे सेलिब्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही वो लोग सेम टू सेम पतेती के टाइम पे अपने अपने घर को डेकोरेट करते हैं. उनके घर के बाहर जो स्टेप्स है एंट्रेंस के, वहाँ पे चौक और कलर पाउडर से वो लोग रंगोली बनाते हैं अलग अलग शेप की. फ्लावर्स रखते हैं, गार्लैंड्स रखते हैं. ओके. ऑन दिस डे स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड. उस दिन वो लोग स्पेशल डिशेस भी बनाते हैं खाने के लिए. पारसी फूड इज़ वेरी डिलीशियस. पारसियों का फूड बहुत ही डिलीशियस होता है, मज़ेदार होता है. उस दिन वो लोग क्या बनाते हैं? वी प्रिपेयर रवा फ्रॉम सूजी, मिल्क एंड शुगर एंड डेकोरेट अ वेराइटी ऑफ डिशेस विथ फ्राइड आलमंड्स एंड रेजिन्स. रवा बनाते हैं सूजी का. हम लोग उसको गुजराती में क्या कहेंगे? सीरो. सीरा खाते हो ना आप लोग, सूजी का बना हुआ, उसमें मिल्क और शुगर डाल के फिर उसके ऊपर आलमंड्स मीन्स बादाम और रेसिन मतलब वो जो ड्राई द्राक्ष होती है ना, रेसिन मतलब ड्राई द्राक्ष, उसको डेकोरेट करने के लिए हम उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं उसको. तो उस दिन वो लोग ये स्पेशल डिश बनाते हैं. वी विजिट ईच अदर्स हाउस एंड गिव गिफ्ट्स एंड फूड टू पुअर पारसी फैमिलीज. उस दिन वो लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं विजिट करने के लिए, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. और जितने भी पुअर पारसी फैमिली है, गरीब लोगों को वो लोग क्या देते हैं? खाना देते हैं. फ्रॉम एन अर्ली एज वी चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग विथ अदर्स. स्टार्टिंग से ही बच्चों को क्या सिखाया जाता है? एक दूसरे के साथ क्या करना है? शेयरिंग करना है, मिल बांट के खाना है. मैन एंड वुमेन मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर. और मैन और वुमेन एक दूसरे के साथ फ्रीली क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं. ओके. सो आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स इन आसाम. आई होप यू विल रिप्लाई सून. विथ लव, जमशेद. मे बी आप लोग वहाँ पे कैसे अपना न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो आसाम के अंदर, वो मैं जानना चाहता हूँ. और मैं आशा करता हूँ कि तेरा रिप्लाई जल्दी आएगा. विथ लव, जमशेद. कौन कह रहा है? जमशेद. किसको? भरत को. कि तू भी तेरे आसाम में तेरा न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करता है वो जल्द ही मुझे बताएगा, क्योंकि मुझे भी उसको जानना है. ओके स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे जमशेद का लेटर ख़त्म हो गया है और आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में आसाम का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है बिहू, वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, डिटेल में हम स्टडी करेंगे. ओके.
सो नेक्स्ट वीडियो में हम भरत जमशेद को लेटर लिखेगा वो हम पढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पारसियों का जो न्यू ईयर है पतेती और नवरोज़ उसके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। एंड स्टिल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन सब्सक्राइब इट, ताकि आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ बिहू के ऊपर, असम का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।